Assalamu alaikum. Uzair, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I think we can just start with the usual round of introduction, Uzair. If you can ask everybody, so it will take about 3 minutes or so, and then we can start. I'm Dr. Asad Chaudhary, and I'm a practicing gastroenterologist in Gujranwala, and it's always a pleasure to be in these ACO meetings and host them for you. Ji Uzair, if you can ask everybody one by one, then we. Assalamu alaikum. My name is Uzair Ali, and currently I'm working as project coordinator at PASA HealthNet Echo Pakistan, and I welcome you all on behalf of PASA HealthNet Echo Pakistan to this session. First of all, I would like to request Zulfikar Ali Bhatti sahab to kindly introduce himself, please. So, thank you. I am Dr. Z.A. Bhatti from Gujranwala. I'm a physician and practicing gastroenterologist. Thank you. Thank you very much, sir. Dr. Anwar Ali Bhutta sahab, can you please introduce yourself? Anwar Bhutta sahab, आपकी आवाज नहीं आ रही. I'm Dr. Anwar Ali Bhutta from Okada. I'm primary care physician. Thank you very much, sir. Dr. Saeed Anwar Sahab from Jhelum. Sir, please, can you introduce yourself? Assalamu alaikum ji. I am Dr. Saeed Anwar from Jhelum. I am practicing as a gastroenterologist here in Jhelum. Thank you very much, sir. Dr. Natasha Imran Saiba, can you please introduce yourself? All right. Hello, Assalamualaikum. I'm Dr. Natasha Imran. I'm working as in charge hepatitis clinic in Sodiwal Hospital, Lahore. Thank you very much, ma'am. Dr. Iqbal Memon Sahab, can you please introduce yourself? Okay. Dr. Wajir Rahman Sahab, can you please introduce yourself? Fine. Dr. Abdul Qadoos Sahab, would you like to introduce yourself? You will have to unmute. All right, I think it's about time. So I would like to hand over mic to Dr. Yasir Zaidi, who is leading consultant gastroenterologist and hepatologist, also associate professor of gastroenterology from Nishtar Medical University, Multan. Sir, please, mic is over to you. Thank you. Assalamu alaikum everyone. हमेशा की तरह it's a pleasure having you all, especially हमारे जो हमारे दोस्त हैं जो हमें अपने बिजी स्केड्यूल्स में से टाइम निकाल कर इस टाइम में हमारे साथ आते हैं और इस डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं. सबसे पहले स्पेशल थैंक यू असद चौधरी साहब का कि वो ऐसी मीटिंग्स को पॉसिबल बनाते हैं और उनकी वजह से ये नॉलेज का जो एक नॉलेज शेयरिंग का जो हिस्सा का जो एक सिलसिला बनता है वो इतना अच्छा हो जाता है कि इससे हम लोग भी रिफ्रेश हो जाते हैं और मुलाकात हो जाती है सबसे, वो एक और अच्छी बात है. और अल्लाह करे कि जिस तरह कोविड बेहतर हो रहा है तो इसमें और बेहतरी इंशाल्लाह आएगी. तो मैं सबसे पहले अल्लाह ताला के पाक नाम से इसको शुरू करना चाहूँगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो उसमें हम एक हेपेटाइटिस बी की एक दो स्पेशल जो सिचुएशंस का हम जायजा लेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को सिंपल रखूं और इसी वजह से मैंने अपनी पिछली प्रेजेंटेशन की तरह इसको सिनेरियो की सूरत में लिखा है और साथ में जस्ट आपको एक टेक होम पॉइंट्स हैं और जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर हम इसको चैट सेक्शन में और बाद में और डायरेक्टली भी हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दिया जा सके. तो हम अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करते हैं. लेट मी स्टार्ट माय स्क्रीन शेयर. कैन एवरीबॉडी सी द स्क्रीन? थोड़ा सा ये इसमें मसला आ रहा है जूम में, तो अगर आप लोगों को नजर आ रही है तो मुझे बता दीजिए. कोई मुझे कंफर्म कर सकता है? Yes. ओके, परफेक्ट.
हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज एक्यूट हेपेटाइटिस बी एंड एक्यूट हेपेटाइटिस सी विद हेपेटाइटिस बी को इन्फेक्शन। तो ये एज द नेम इंडिकेट्स, जिस तरह इसका नाम है, इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हम किस चीज को हम टच करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं हमेशा अपनी अल्मा मैटर की तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हमेशा ये दिखाता रहूं। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और एक फ्रेशनेस आ जाती है मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर जब भी मेरा दिल करे। और दिस इज द प्लेस विच इज अ पार्ट ऑफ माई हार्ट, और जो जिसके बगैर मैं कुछ भी नहीं होता अगर ये ना होता। तो आज में हम कवर करेंगे एक्यूट हेपेटाइटिस बी, मतलब हेपेटाइटिस बी की एक्यूट इन्फेक्शन, और हेपेटाइटिस बी और सी की को इन्फेक्शन, मतलब दोनों एक साथ इन्फेक्ट हो जाएं तो उसके अंदर हम उसको कैसे डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बात करते हैं एक 39 ईयर ओल्ड बैंकर की, जो कि हेपेटाइटिस क्लिनिक में आए और उन्होंने बताया कि उनको 2 वीक से जॉन्डिस है, मतलब आंखें पीली हैं और दो ही वीक से साथ में बुखार। दोनों सिम्टम्स कंकॉमिटेंटली शुरू हुए थे। पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी। अल्कोहल ओकेजनल वीकेंड ड्रिंकर था, बट इन वेरी कंट्रोल्ड अमाउंट्स। बाकी कोई ड्रग्स, हकीम मेडिकेशन वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं थी। कुछ बेसिक ब्लड वर्क वो साथ लेकर आए हुए थे, और जिसके अंदर नॉर्मल सीबीसी थी, आईएनआर नॉर्मल था, और साथ में हेपेटाइटिस बी सी का स्टेटस नेगेटिव था, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर स्वोलन एडिमेटस गॉल ब्लैडर विद पेरिकोलिसिस्टिक एकोस थी। और जब LFTs थी उसके अंदर बिलिरुबिन was 9.2, ALT 1939 and AST was 1600 with an ELK FOS of 208. तो अगर हम देखें तो हमारा एक बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सा एक डायग्नोसिस बनता है which is acute hepatitis. So the patient was suffering from acute hepatitis, और he was a 39 year old, fairly young person. तो it's normal, it's like ये कोई इतनी वरिंग सिचुएशन हमें नजर नहीं आई थी इसके अंदर। जैसे ही इसको देखा गया तो हमने सोचा कि इसकी एक्यूट वायरल सेरोलॉजी चेक की जाए, और ये मेरे अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि जब भी आपके पास एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का पेशेंट आए तो उसको फॉर ग्रांटेड ना ले लीजिए कि ये कौन सा हेपेटाइटिस होगा, कि जी ये पीला हेपेटाइटिस है तो ये ए होगा और ई को छोड़ जाते हैं। और खास तौर पे अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें ई, और एल्डरली में ई को जरूर चेक कीजिए। लेकिन इसका साथ ही ये मतलब नहीं है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को ए नहीं हो सकता और एल्डरली में ए नहीं हो सकता, इट इज देयर। और हमेशा की तरह जो है मैं ये पॉइंट आउट करूंगा कि हेपेटाइटिस बी की कोर एंटीबॉडी ये अपने आप, अगर हाँ कॉस्ट का हिस्सा, कॉस्ट इफेक्टिव ना, उसको कॉस्ट का प्रॉब्लम ना हो, तो इस टेस्ट को जरूर अपनी एक्यूट वायरल सेरोलॉजी का हिस्सा बनाइए। तो व्हाट हैपेंड वाज कि जब हमने उसके ये टेस्ट भेजे तो उसके अंदर IgM anti-HAV वो was found to be negative, E was also negative, but hepatitis B core antibody, this test came back to be positive. अब जब वो टेस्ट पॉजिटिव आया, अब हमारा मैनेजमेंट प्लान क्या होना चाहिए? इस चीज को देखने के लिए मैंने इसी वजह से इस पेशेंट की एज दोबारा हाईलाइट की थी। वो ये थी कि 39 ईयर ओल्ड का यंग फेयरली फिट पर्सन हु हैज नो अदर कोमॉर्बिडिटीज। तो हमें इसके अंदर कोई भी परेशानी वाली चीज नजर नहीं आई। तो हमारे ज़हन में क्या आता है, हाउ विल वी मैनेज दिस एक्यूट हेपेटाइटिस? एक्यूट हेपेटाइटिस को जब भी हमने मैनेज करना है तो हमारे ज़हन में फर्स्ट थिंग आती है दैट इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। एट सम पॉइंट्स जिसको देखा जाए कि हेपेटाइटिस हो रहा है और एक खास लिमिट से ज्यादा है। अब वो खास लिमिट्स जो होती हैं आपकी लोकल हो सकती हैं, वो खास लिमिट्स जो हैं कुछ बुक्स कोट करती हैं, कुछ उसको कोट नहीं करती। बट इफ पेशेंट इज स्टेबल, फेयरली, मतलब देखने में ठीक ठाक है, और उसको कोई इवन टू द एक्सटेंट कि अगर वो खा पी सकता है, उसको उल्टियों का इश्यू नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको कंजर्वेटिव इन अ सेंस ये रख सकते हैं कि इवन होम मैनेजमेंट इज दैट इज परफेक्टली फाइन। अब जो बुक्स इसके बारे में कुछ लिखती हैं, वो बिलिरुबिन अगर मोर देन 10 है तो इट इज वरीसम, ALTs अगर thousands के अंदर हैं तो दैट इज वरीसम। सो दैट इज द पॉइंट व्हेन वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि अब क्या हो रहा है। हमारा एम है इसके अंदर कि आइडेंटिफाई करना है वो लोग जो कि क्रॉनिसिटी की तरफ जाएंगे। एक्यूट हेपेटाइटिस है, क्रॉनिसिटी के चांसेस हेपेटाइटिस बी के साथ कम है लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। प्रिवेंटिंग द रिस्क ऑफ एक्यूट और सब एक्यूट लिवर फेलियर। हेपेटाइटिस बी जब एक्यूट हेपेटाइटिस की फॉर्म में आ जाता है आपके पास, तो एक
सटल कोर्स, बहुत ही मुनासिब सी बीमारी से लेकर लिवर फेलियर और डेथ तक कॉज कर देता है। तो हमने रिस्क को मिनिमाइज करना है कि एक्यूट सिवियर डिजीज हो जाए या सब एक्यूट लिवर फेलियर हो जाए, और अगर आप इनसे इसको बचा लेंगे तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव रहेगी। उसको खुदा ना खास्ता ट्रांसप्लांट की अगर जरूरत ना पड़ी तो उसकी ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ उसकी जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर वो आपकी इंटरवेंशन की वजह से वो अगर एक अदद बीमारी से जल्दी बाहर आ जाए। तो हम इसके अंदर जब देखते हैं तो हमें नजर आता है सबसे पहले कि जो प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट, मतलब जो मेन फैक्टर इसके अंदर प्ले कर रहा होता है वो दैट इज एज। आई होप आप लोगों को मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, तो इससे मैं कुछ चीजों को पॉइंट आउट करता रहूंगा। एंड आई एम सॉरी अबाउट माय वॉइस, थोड़े से वॉइस अब्यूज की वजह से थोड़ी सी बैठी हुई है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। वो ये है कि पेरिनेटल एक्सपोजर, those patients, those babies who are born to hepatitis B positive mothers, और उनको एट द टाइम ऑफ पैदाइश के वक्त अगर उनको हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो गया है तो उसके अंदर दो के उनको वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी 95% चांस है कि वो पेशेंट जो है वो बच्चा वो क्रॉनिसिटी मतलब क्रॉनिक डिजीज की तरफ चला जाएगा। और वो बच्चे जिनको 5 साल की उम्र से कम हेपेटाइटिस बी हो जाए, इन लोगों में तकरीबन 30% चांस होता है कि ये क्रॉनिसिटी में चले जाए। मगर अगर एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट एडल्ट, मेरी जो एम्फोसिस होगा वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट के ऊपर होगा कि उसकी इम्यून सिस्टम इज इंटैक्ट और वो एक एडल्ट है, इन दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करता, तो उसके अंदर एक्यूट हेपेटाइटिस बी की जो चांसेस ऑफ क्रॉनिसिटी आर ओनली 2 to 5%। मतलब 2 से 5% का मतलब ये है कि सिर्फ चंद फीसद ही ऐसे लोग होंगे, 100 में से 5 लोग मैक्सिमम, मिनिमम 2 लोग ऐसे होंगे जिनको एक्यूट हेपेटाइटिस बी जो है वो क्रॉनिसिटी की शक्ल इख्तियार करेगा। अब जिनको क्रॉनिसिटी नहीं हुई और एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ, उनमें क्या होगा? उसके अंदर 2/3 मतलब 2/3 ऑफ पेशेंट्स के अंदर एसिम्प्टोमेटिक सब क्लिनिकल सा कोर्स होगा। एक हल्का सा प्रोड्रोम ऑफ फीवर, मलेज हुआ, हल्का फुल्का जॉन्डिस हुआ, और माइंड यू समटाइम्स ये वो जॉन्डिस होता है जो पेशेंट इग्नोर भी कर जाता है, और इसी वजह से ये वाले केसेस यूजुअली अनरिकॉग्नाइज्ड गुजर जाते हैं। एंड थैंकफुली क्योंकि इसके अंदर 2 to 5% चांसेस है क्रॉनिसिटी का, एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ, बॉडी ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और उसको, बल्कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, उसको मार के और आपको बताए बगैर ही उसको रवाना कर दिया वहां से। अब जो बच जाते हैं 1/3, 1/3 पेशेंट्स जो उसके अंदर से बच जाते हैं, वो उसमें से माइल्ड टू मॉडरेट सिवेरिटी का एक्यूट हेपेटाइटिस उनको हो सकता है, जिस तरह के ये जो हमारे सिनेरियो में जो पेशेंट थे इनको था। 1% चांस ये है कि पेशेंट विल गो इनटू एक्यूट लिवर फेलियर। और ओवरऑल लेकिन अगर हम देखें तो जितने भी एक्यूट लिवर फेलियर के केसेस आते हैं उसके अंदर 7% केसेस आर ड्यू टू एक्यूट हेपेटाइटिस बी, व्हिच इज अ फेयरली बिग परसेंटेज अगर देखा जाए। तो हमने क्या करना है, वी आर डीलिंग विद दिस 1/3 ऑफ द पेशेंट्स, और इनके अंदर हमारा एम ये होना चाहिए कि इंटरवीन करें, वक्ती इंटरवीन करें, और इंटरवेंशन तब करें जिस वक्त रिक्वायर्ड हो, बिला वजह की इंटरवेंशन ना करें। तो हम बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि इस पेशेंट के अंदर आप लोगों का क्या ख्याल था कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन लेट्स सी कि हम लिटरेचर इसके बारे में क्या कहते हैं। अब जब आप टेस्टिंग करेंगे इसके अंदर, जैसा कि इस पेशेंट में था, वो ईजल की कुछ रिकमेंडेशंस और ये बताती हैं कि रैपिड वायरल एलिमिनेशन हो रही होती है क्योंकि इम्यून सिस्टम इज एक्टिव अगेंस्ट द वायरस, और विद इन दीज 2 वीक्स पेशेंट जो है उसका इम्यून सिस्टम इस वायरस को क्लियर कर देता है, और जो है हेपेटाइटिस बी की सरफेस एंटीजन आपको नेगेटिव मिलती है। बट एट दैट टाइम दैट इज द पॉइंट कि इसको आपने हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी इसको चेक करनी है, और दैट इज द और इसी वजह से इसको वो विंडो पीरियड का नाम दिया जाता है, जिसके अंदर सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, एक्यूट हेपेटाइटिस के फीचर्स हैं, और आपको एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ जो टेस्ट पॉजिटिव मिल रहा है दैट इज एक्यूट हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी टेस्ट। अगर हम थोड़ी सी इसके ऊपर देखें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है तकरीबन 60 से 90 दिन, मतलब 1 से 1.5 महीने तक हो सकता है। मतलब एक्सपोजर पेशेंट को महीना 1.5 पहले हुआ था, और लेकिन
वायरस ने इंक्यूबेट किया और एक्यूट हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ। 60 से 90 दिन के अंदर पेशेंट को सिम्टम्स आने शुरू हुए और इवेंचुअली हेपेटाइटिस हो गया। अब कितनी डोज में उसको इनोक्यूलेट हुआ है, जैसे अगर तो कोई नीडल इंजरी है या कोई ब्लड बॉर्न है, उसके अंदर चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे बनिस्बत अदर रूट्स के, लाइक कोई अगर सेक्सुअल रूट है या कोई और उसके अंदर कोई और जो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड जो है उसको जा रहा है, तो इसकी जो है परसेंटेज वो फर्क करेगी, डिपेंड्स, जितनी ज्यादा डोज गई होगी उतना ज्यादा एक्यूट हेपेटाइटिस बी होने का चांस बढ़ जाता है। The disease gets severe if infected with other viruses, like अगर हेपेटाइटिस सी है पेशेंट को concomitantly और हेपेटाइटिस के जो अदर HSV, ABV, HSV वगैरह जो वायरसेस हैं, अगर वो भी साथ में आ जाए और पेशेंट का अगर इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, लाइक HIV की सूरत में या डायबिटीज की सूरत में, तो डिजीज कोर्स जो है वो एग्रेसिव हो जाता है और क्रॉनिसिटी के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। सिम्टम्स हम अगर देखें तो वही मलेज, नोजिया, वॉमिटिंग जैसे इस पेशेंट में आ रहे थे, और उसके अंदर प्रोड्रोम होगा फीवर का और अदर सिम्टम्स लाइक आर्थ्रेल्जिया, आर्थराइटिस, रैश एंड उनके बाद ये वाला जॉन्डिस के सिम्टम्स शुरू होंगे। लेकिन जैसे हमने पहले बताया था कि सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, तो ये आमतौर पे ये वाले इवन जो ये प्रोड्रोमल फीचर्स हैं ये भी मिस हो जाते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस which the patient can run into, which is acute liver failure, और यही आपका एम होना चाहिए। जो प्राइमरी एम इन ट्रीटिंग acute hepatitis B is acute liver failure प्रिवेंट करना है आपने। क्यों? अगर acute liver failure हो गया तो स्पॉन्टेनियस सर्वाइवल के चांसेस सिर्फ 20% है, और अगर पेशेंट को जो है लिवर ट्रांसप्लांट अवेलेबल हो जाता है तो आप 50 to 60% केसेस को बचा तो लेंगे, लेकिन उनकी जो मॉर्बिडिटी है, जो उसकी डिजीज कॉस्ट है, उसको दैट इज गोइंग टू बिकम सब्सटेंशियल। और अच्छी बात यह है कि इवन आपको पेशेंट को हेपेटाइटिस बी एक्यूट था, आपने यू मैनेज टू टेक हिम टू द सेंटर व्हिच इज लिवर ट्रांसप्लांट इक्विप्ड, तो आपका जो ग्राफ्ट लगा है उसके अंदर चांसेस ऑफ डिजीज रिकरेंस आर वेरी लेस, क्योंकि वी हैव गॉट वेरी गुड ड्रग्स राइट नाउ। अब पेशेंट को माइल्ड डिजीज से अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो उसको सिवियर एक्यूट हेपेटाइटिस बिफोर डेवलपिंग लिवर फेलियर, जो उसकी कंडीशन होती है वो दैट इज सिवियर एक्यूट हेपेटाइटिस बी, which is a potentially life threatening situation। और इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? by checking coagulopathy, प्रोट्रैक्टेड अगर डिजीज इलनेस का डिजीज कोर्स आपको मिल रहा है कि आपके परसिस्टेंट सिम्टम्स चल रहे हैं मोर देन 4 वीक्स के लिए, और पेशेंट को एक्यूट लिवर फेलियर के साइंस डेवलप होना शुरू हो गए हैं, क्लैप्स हो गए हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, एसाइटीज आ रही है, तो पेशेंट इज गोइंग इनटू एक्यूट लिवर फेलियर। नाउ इज द बिग क्वेश्चन, और मैं हमेशा पूछता होता हूँ कि टू ट्रीट और नॉट टू ट्रीट। अब लिटरेचर इसके बारे में हमने जो मैंने फॉलो करने की जो आई डिसाइडेड कि जो कि सिंपलर था, वो दैट वाज द ईजल रिकमेंडेशन। और ईजल ये रिकमेंड करती है कि अर्ली एंटीवायरल थेरेपी कैन प्रिवेंट प्रोग्रेशन टू एक्यूट लिवर फेलियर एंड द नीड फॉर द लिवर ट्रांसप्लांट इन पेशेंट्स। बट साथ ही वो ये बताती है कि टाइमिंग इज ऑफ अटमोस्ट वैल्यू। एक दफा पेशेंट अगर मॉडरेट से होता हुआ अगर सिवियर डिजीज की तरफ चला गया है और सिवियर होने के बाद साइंस ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर आ गए हैं या हेपेटिक एन्केफेलोपैथी, मतलब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं, अब अगर आप आके पेशेंट को एंटीवायरल शुरू करा भी देते हैं तो दैट इज, अब इसका कोई डाटा ये सजेस्ट करता है कि इसका फिर कोई फायदा नहीं है। अब पेशेंट उसी तरह ही अपने ही वजह से डिजीज से बाहर आएगा या पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाएगी। और ईजल ये भी कहती है कि इवन इफ यू रिकॉग्नाइज दिस केसेस एट एन अर्ली स्टेज, आप उसकी क्रॉनिसिटी को भी जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इस वाले क्लेम के अंदर जो लेवल ऑफ एविडेंस है वो थोड़ा सा वीक है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने इस पेशेंट को ट्रीट करना है। अब अगर ट्रीट करना है तो किस चीज से करना है? तो TDF मतलब जो हमारी टेनोफोविर डिबॉक्सिविल है और एंटेकाविर है और लेमिवोडीन है। दीज आर द ड्रग्स जिनके ऊपर एक्सटेंसिव डेटा अवेलेबल है और एक्यूट सिवियर हेपेटाइटिस बी होने की सूरत में ये आप सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एज टेनोफोविर एलेफेनामाइड व्हिच इज द लेटेस्ट मॉलिक्यूल और मॉडिफिकेशन ऑफ टेनोफोविर डिबॉक्सिविल, इसको भी टेक्निकली इसी तरह ही
काम करना चाहिए, लेकिन अभी डाटा इज इनसफिशिएंट। पुराना डाटा सजेस्ट करता है कि अगर एक्यूट सिवियर डिजीज हो गई है तो उसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी रोल है, बट लेकिन वो डेटा इतना पुराना है कि मे बी उस वक्त लैमेवुडीन और शायद इससे भी पुरानी ड्रग्स हो, और मे बी ये जो इस वक्त हाई जेनेटिक बैरियर ड्रग्स हैं वो अवेलेबल नहीं थी। नाउ पेशेंट माइल्ड डिजीज से एक्यूट सीवियर डिजीज में गया और सीवियर डिजीज से होता हुआ लिवर फेलियर में चला गया। इफ दिस हैपेंस, patient needs an immediate referral to a transplant enabled center, और ये वो टाइम है कि इसको अव्वल तो आने ही ना दें, लेकिन अगर आ जाता है तो इसमें भी जल्दी रेफरल का आप जो है वो इंतजाम करें। और इट इज अ गुड थिंग, एक अच्छे वक्त पर किया गया रेफरल जो है वो भी आई बिलीव कि दैट इज समथिंग लाइक कि वो भी एक सदका जारिया है। अगर एक पेशेंट को बिल्कुल एन्केफेलोपैथी हो गई है, ब्लीड कर रहा है, कोएगुलोपैथी है और इज जस्ट अबाउट टू गो, एट दैट टाइम उसको रेफर करने का कोई फायदा नहीं है, और रादर वो एक पेशेंट की फैमिली के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है कि उन्होंने लेकर भी जाना है और एट द एंड वो दे रीच द ट्रांसप्लांट सेंटर और वहां से उनको जवाब मिल जाता है कि जी लिवर फेलियर इज टू सिवियर कि अभी इसको कुछ नहीं किया जाता। अब अगर इसके साथ आपने करना क्या है कि इसकी फॉलोअप को अगर देखें, अगर स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, मतलब सरफेस एंटीजन की एंटी-एचबीएस आ गई है, तो देयर इज नो एडिशनल फॉलोअप। बट इफ द डिजीज हैज प्रोग्रेस्ड टू क्रोनिसिटी और हमने डॉक्यूमेंट कर दिया, जिस तरह पिछली दफा प्रोफेसर अल्ताफ ने बताया था कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन आपने 6 मंथ्स से ज्यादा परसिस्टेंट डॉक्यूमेंट कर दी है, देन स्टैंडर्ड मैनेजमेंट एज पर गाइडलाइंस ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी आप ट्रीट करेंगे। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रीदर लेते हैं और सेकंड सिनेरियो की तरफ जाते हैं। सेकंड सिनेरियो में हम एक 50-year-old फीमेल के बारे में हम डिजाइन टू डील विद, जिनको डायबिटीज थी और वो हमारे पास जनरलाइज्ड मलेज और वीकनेस के साथ आई थी। She had an exposure with hepatitis B in a sense कि her husband was hepatitis B positive और उनकी हिस्ट्री थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हुई थी, उनकी 2 सर्जरीज थी गालिबन, उनमें से एक इट वाज a hysterectomy and other was a cholecystectomy। तो her baseline investigations were done, जिसके अंदर पाकिस्तानी खवातीन के हिसाब से 11.2 की HP, platelet count of 302 and TLC of 11,000, bilirubin was normal, ALT was 47, AST was 49, and alkaline phosphatase was 129. Ultrasound showed an enlarged liver with fatty texture, and over here hepatitis B surface antigen was found to be positive and NTHCV was found to be positive. और subsequently जब इनका PCR किया गया तो दोनों came back to be positive, and they were qualitative PCR was done, and quantitative for hepatitis B should have been done over here, लेकिन as it's a real case तो यहाँ पर initially qualitative PCR check किया गया था। Fibroscan was done at the institute which showed F0 F1 fibrosis, मतलब no fibrosis, mild disease। So यहाँ पर हमारा diagnosis बनता है hepatitis B and hepatitis C co-infection। Patient is a treatment candidate for both hepatitis B and C, और अब बात यहाँ पे पॉइंट्स क्या हैं, क्या हमने इनको दोनों को एक साथ ट्रीट करना है, क्या हमने हेपेटाइटिस बी को पहले और हेपेटाइटिस सी को बाद में ट्रीट करना है, या कोई स्पेशल फॉलोअप्स हैं। और पिछली दफा की तरह मेरा क्वेश्चन व्हिच सेज कि टू ट्रीट और नॉट टू ट्रीट। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी को इन्फेक्शन जब होती है तो हमें, मैंने पहले भी बताया था कि इट एक्सेलरेट्स द लिवर डिजीज प्रोग्रेशन, और अगर पेशेंट को अंडरलाइंग सिरोसिस है तो उसमें प्रोग्रेशन ऑफ सिरोसिस और साथ ही इंक्रीज रिस्क ऑफ HCC इसके अंदर आ जाता है। तो हम आपके 2 ही पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि आप जो है इसके अंदर क्रॉनिसिटी को भी आपने प्रिवेंट करना है और इस तरह आप सिरोसिस को भी प्रिवेंट कर रहे हैं, और जब आपने सिरोसिस को प्रिवेंट कर लिया तो आपने HCC को प्रिवेंट किया है। So all patients of chronic hepatitis B who are at risk even, they need to be checked, और चाहे उनके कोई रिस्क फैक्टर हो या ना हो, रिस्क फैक्टर है तो डेफिनेटली होना है, और अगर नहीं है तो आपने हेपेटाइटिस सी को तो चेक करना ही करना है। मेक इट अ हैबिट प्लीज, इसको हैबिट बनाइए कि हेपेटाइटिस बी के पेशेंट में सी जरूर चेक कीजिए। रूटीन वर्कअप फॉर हेपेटाइटिस बी व्हिच जो वाज डन विद PCR of HCV was also done, and साथ में जो additional workup for hepatitis B was done, which include hepatitis B and E antigen, E antibody, and anti-HDV and anti-HIV। हमें लास्ट लेक्चर में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि anti-HDV और HIV को ना भूलें, इस दफा फिर इसी पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा।
Patient should be carefully characterized for the replicative status of both. इसी वजह से ये ईजल की लाइन है, इसी वजह से हमने हेपेटाइटिस बी और सी को दोनों का पीसीआर चेक किया और हमने इनको कहा कि इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि एक वायरस है तो दूसरे को वो उसने कर लेना है, कब उसको ओवरकम कर लेगा, उसको सप्रेस कर देगा. And always check the D as well. Presence of hepatitis B should be ascertained, and when HCV RNA is present, HCV infection should be treated as the rules apply to HCV mono-infected patients. मतलब जो इसमें HCV से आप डील करेंगे उसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होगी. Use all your knowledge and the indications जो कि जो आप नॉर्मल हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वही ड्रग्स इस्तेमाल होंगी इन द सेम डोज एंड इन द सेम ड्यूरेशन. Treatment guidance according to EASL वो ये कहती है कि hepatitis B और C co-infection should be treated with the same regime following the same rules as HCV mono-infected patients. It's patient co-infected with hepatitis and B and C fulfilling the standard criteria for hepatitis B should receive nucleoside-nucleotide analog treatment. Suggested treatment इसके अंदर sofosbuvir and velpatasvir और साथ ही tenofovir और alafenamide या tenofovir desoproxil as per guidelines. और ट्रीटमेंट एंड पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है, वो हम पिछली दफा में कवर कर चुके हैं. इन दिस केस बोथ द वायरस नीड टू बी ट्रीटेड कंकॉमिटेंटली एज द पेशेंट फॉल्स इनटू द क्राइटेरिया फॉर बोथ द वायरसेस टुगेदर. अब यहाँ पर एक थोड़ा सा जो मैंने चीज हाईलाइट करना चाह रहा था वो ये था कि ऐसे केसेस जो कि हेपेटाइटिस बी और सी की ऑन सीरोलॉजी पॉजिटिव हों, अब यहाँ पर ये भी हो सकता था कि पेशेंट का पीसीआर डिटेक्टेड होता और हेपेटाइटिस बी का डीएनए डिटेक्टेड ना होता. यहां पर भी स्टैंडर्ड वर्कअप आप करते हुए आप आगे चलेंगे. यहां पर क्या इशू आता है कि आप हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करना स्टार्ट करें लेकिन पीछे से हेपेटाइटिस बी रीएक्टिवेट हो जाए. यहां पर क्या करना है आपने, पेशेंट्स विद हेपेटाइटिस बी और सी शुड बी ट्रीटेड विद द सेम एंटी एचसीवी रेजिमेंस फॉलोइंग द सेम रूल्स एज एचसीवी मोनो इन्फेक्टेड पेशेंट्स. ये लाइन तो अब हमें याद हो जानी चाहिए. Patients who are hepatitis B surface antigen positive should receive nucleotide analog prophylaxis at least until 12 weeks post anti-HCV therapy. मतलब आपने साथ ही दोनों को ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है. हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट जो है वो 12 वीक्स पे खत्म हो जाएगी और आप अपना उसका ETR चेक करेंगे, और HC और HBV जो है उसको आप 12 वीक्स एक्स्ट्रा चला लें उसके आगे. So sofosbuvir with velpatasvir for 12 weeks and monitor closely for ALT flares when rising bilirubin. If ALT flares is greater than 5 times the upper normal limit, you check for HBV DNA. Or if DNA is positive, then start workup for hepatitis B and treat with nukes. अब इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी कॉस्ट का मसला होता है, इस सारे का मसला होता है, पेशेंट के फॉलोअप का मसला होता है. तो व्हाट वी कैन डू इज वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट कंकॉमिटेंटली. सी को 12 हफ्ते के लिए और बी को 24 हफ्ते के लिए, और इस दौरान पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करते रहे. सो हमारा टेक होम पॉइंट ये है कि इसको दोनों को ट्रीट करें और साथ ही which turns out to be cost effective. सो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि मैंने इसको जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने इसको सिंप्लीफाई किया. और डॉक्टर सद आई होप कि मैंने टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लिया था, लेकिन उसके लिए माजरत. वो मेरे से थोड़ी सी स्पीड वैसे ही कम हो रही थी आवाज की वजह से. थैंक यू जासिर. मुझे थोड़ा अंदाजा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और पोस्ट कोविड मरीजों को संभालते संभालते क्या सूरत हाल है. वी विल question and answer. Already Dr. Farooq Saab has a question, but before going for questions, we have a case which is pretty similar. तो जरा अच्छा होगा कि वो रिवीजन भी हो जाएगी. तो उज़ैर, कैन यू शेयर द केस एंड हु विल बी प्रेजेंटिंग द केस? आप जरा बताएं. Yes, Dr. Raj, are you with me? Ji, sir bhai. Can you hear me, sir bhai? Yes, please. Assalamualaikum. My name is Dr. Raj and I'm going to present the case. The case shows a 30-year-old female known case of HPV hepatitis B E antigen negative chronic infection presented in OPD 6 months after her delivery with anti-HCV positive on preoperative screening. She is non-diabetic and non-hypertensive. Currently, no active complaint
and she is treatment naive. She is currently not breastfeeding. On examination, abdomen and chest were normal. Her family history was insignificant in previous, no significant previous medical history. She was advised the following investigations. Her HB was 13.4, TLC 8.9, platelet 267, AFP was 2.2, and CRET was 0.70. Bilirubin was 0.5, and ALT 24, and AST was 30. Her alkaline phosphatase was 93, and albumin was 4.0. PTI now was 11 by 1.0, and sugar was 79. Her EPRI was 0.3. Serological tests were anti-HCV positive and HBs antigen positive. Her anti-HIV 1-2 was negative. On anti-HTV was positive. So we got the PCR done, which was not detected. HCV RNA by PCR showed the following, and HBe antigen was negative, anti-HBe antibody was positive, and HBV DNA by PCR was 431 international units. Her ultrasound abdomen showed normal liver echo texture, no ascites, and fibroscan was F0, F1 METAVES score. The questions are, what further investigations are required, and how will you manage? Thank you, Oj. So, Yasir, we case of a 30 years old lady, known surface antigen positive, labeled as Hep B E antigen negative chronic infection. And during the course of pregnancy and screening, she was found to be hepatitis C positive. Family history is negative for HCC and cirrhosis, and she's not lactating right now. LFTs are good, and EPRI is very good. As you can see, hepatitis C virus is 29,000 units per ml. E antigen negative disease, and DNA is 431. She has this borderline Delta virus that we do get because we screen all patients for Delta anyway, but then we run HDV RNA, which was negative. Now it's pretty similar scenario you discussed. Now, so what will you do here? I think the thing is, as you have told, that we have to go for treatment of hepatitis C with SOF and Velpa for 3 months. SOF DECLA in our cost settings, we do give the test 3 months. And for B, the question is, we wait and watch, or as you said, 24 weeks treatment. So, Yasir, over to you. Thank you very much. So this is an excellent case, or as you said, ये तो तकरीबन वही का almost वही case है अगर इसमें देखा जाए, but I think के थोड़ी सी age का फर्क पड़ रहा है. She is a younger patient और इसमें anti-HDV positive है. अगर मैं इसके अंदर जो only the point जो कि highlight होना चाहिए वो ये है कि सबसे पहले तो इसमें ये देखना चाहिए कि is she lactating or not, और वो by some chance के वो नहीं कर रही. ये हमारे यहाँ एक जिसे कहते हैं नॉर्म है कि हेपेटाइटिस को वो टैबू बना के और बच्चों की ब्रेस्ट फीड बंद करा देते हैं. तो इट्स समथिंग कि जो कि पेशेंट को कम्युनिकेट करनी चाहिए कि जिनके फॉलो अप में हो. आई हैव गॉट अ नंबर ऑफ केसेस जिनको जो हमारे पास आए ड्यूरिंग, जिसे कहना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आए, और हमने उनको सेफली वी आस्क्ड देम टू गो बैक कंप्लीट पोस्ट प्रेगनेंसी आए एंड दे वर ब्रेस्ट फीडिंग, और हमने उनको कहा कि जी आप जाएं, पेशेंट को, बच्चे को कम से कम एक साल तक आप दें अपना जो मदर्स फीड दें, उसके बाद वापस आए. और क्योंकि कोई सिरोसिस का एलिमेंट नहीं था तो वी कुड हैव वेटेड. अब अगर इस वाले इसको देखें, एज द पेशेंट इज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग एट द मोमेंट, और इसमें दो की कोई अर्जेंसी नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ अर्जेंसीज आ जाती हैं. लाइक शी इज अ सेक्सुअली एक्टिव फीमेल, plus she must be having other children at home, must be having other family members. So kuch ho ya na ho, she is a source of infection for them. The sooner you treat her, the sooner you are putting away a source of infection from a household. और ये आप देखेंगे कि आपके पेशेंट्स जो कि टर्मिनल हो जाते हैं, जो कि सेरोटिक्स होते हैं, वो जाते जाते किसी ना किसी अपने फैमिली मेंबर को ये वायरस दे जाते हैं. तो और वो आमतौर पे उनका प्राइमरी केयर गिवर होता है. तो इस चीज को अगर हम मद्देनजर रखें
तो शी इज अ गुड ट्रीटमेंट कैंडिडेट, और आई वुड डेफिनेटली ट्रीट हर विद फॉर बोथ, और इसी तरह ही जो विद स्टैंडर्ड रिजीम फॉर हेपेटाइटिस सी, एंड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस बी, फॉलोइंग ऑल द ट्रीटमेंट जिसको कहना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं हेपेटाइटिस बी को भी ट्रीट कर रहा हूँ। अब हेपेटाइटिस को बी को जब मैं ट्रीट करता हूँ इन सच अ केस, तो मैंने दो चीजें देखनी होती है अपने जहन में। आई एम जस्ट कवरिंग वाइल ट्रीटमेंट फॉर दिस सीन, और वो तब होता कि जब ये ट्रीटमेंट कैंडिडेट फॉर हेपेटाइटिस बी ना होती, बट इसके अंदर शी इज अ ट्रीटमेंट कैंडिडेट, शी नीड्स टू बी ट्रीटेड फॉर बोथ. Standard treatment for hepatitis C, 12 weeks of sofosbuvir and valproatin, or with concomitantly treatment of hepatitis B as well. Ji, thank you. Uzair, can you stop share? Thank you very much. I think ये हमने 2 दफा किया है. Uzair, we have to take a question from Dr. Farooq. As you unmute him, there is a question in the chat by Dr. Quratul and Yasir. ये पूछ रही हैं कि last case जो आपने discuss किया था, how do we know that hepatitis B was not acute in that case? Doctor, can everybody hear me? Dr. Kuratulan, आप if you want to ask your question, I can unmute you, क्योंकि आप इसमें जो चीज पूछना चाह रही हैं, वैसे I've understood कि आप ये देखनी, जो अगर आप मेरा second scenario की बात कर रही हैं. जी, second scenario की. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी सर, जो दूसरा सिनेरियो था. हाँ, नाइस. तो जो इसका सेकंड सिनेरियो है, वो दैट वाज अ मिक्स्ड केस, और इसके अंदर हम एक्यूट इसको नहीं फॉर श्योर कह सकते. रीजन बीइंग कि इस केस के अंदर जो है हमने वो नहीं किया, चेक नहीं किया, जिसे कहना चाहिए इसका हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी जो है हमने चेक नहीं किया हुआ. सो वी कैन नॉट चेक के, सॉरी नॉट द कोर एंटीबॉडी, इसका जो आईजीएम फ्रैक्शन हमने चेक नहीं किया हुआ. तो दैट इज अ केस ऑफ को इन्फेक्शन, मतलब उसमें 2 वायरसेस को इकट्ठा ट्रीट करने की बात हो रही है. हेपेटाइटिस बी और सी को इन्फेक्शन को आप मेरा जहां तक जो मुझे आपका सवाल समझ आया, आप इसको एक्यूट से मिक्स कर रही हो. तो दैट्स अ सेपरेट थिंग. एक्यूट हेपेटाइटिस बी का सिनेरियो पहले वाला था. जो सेकंड वाला है दैट्स अ को इन्फेक्शन. इसमें हम एक्यूट वैसे भी लेबल नहीं कर सकते, क्योंकि एएलटी एंड एएसटी का अगर आप लेवल देखें तो वो कोई बहुत ज्यादा बहुत एक्यूट कम था. हाँ जी, ये उसमें नहीं जाता. हाँ जी, मुझे समझ आ गई. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. बाला, इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट पिक किया. Dr. Farooq, please. Dr. Farooq. जी, अस्सलाम वालेकुम सर. सर, इट वाज एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. एक क्वेश्चन सर मेरा एक्यूट हेपेटाइटिस बी के मुतालिक है, और एक जो है ना वो को इन्फेक्शन के मुतालिक है. जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी में हम कितने वीक्स के लिए पेशेंट को ट्रीट करेंगे, और उसके बाद क्या हमारे जो ट्रीटमेंट स्टॉप करने की गाइडलाइंस है वो सेम होंगी जो कि पिछले लेक्चर में हमें बताया गया था क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के मुतालिक. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बी और सी दोनों को इन्फेक्शन है, और सी तो डेफिनेटली हमने वायरल लोड जब भी आ गया उसको ट्रीट करना ही करना है, लेकिन बी का हम ये डिफाइन कैसे करेंगे? अगर उस पेशेंट का एएलटी लेट से 20 या 30 है, तो हम कैसे ये डिफाइन करेंगे कि ये इस वक्त टी एंटीजन पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉनिक इन्फेक्शन में है, यानी इम्यून टॉलरेंट है? तो अगर उसमें होगा तो हम क्या उसको भी ट्रीट कर देंगे? आई एम सॉरी, आप अपना सेकंड क्वेश्चन जरा दोबारा बताइए, मैं उसको फॉलो नहीं कर सका. सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि सी का डिटेक्टेड हो गया पीसीआर, हमने उसको ट्रीट करना ही करना है फॉर 12 वीक्स. बी का जो है पेशेंट का एएलटी है लेट्स से 20 या 30, तो हम बी की क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्या हम अगर पेशेंट इम्यून टॉलरेंट फेज में है बी की, तो क्या हम उसको भी साथ में ट्रीट कर देंगे, या हम उसके लिए वेट करेंगे कि पेशेंट का एएलटी राइज करे और हम फिर उसको ट्रीट करें और फिर सेम गाइडलाइंस उस पर अप्लाई करें जो कि आइसोलेटेड एक्यूट हेपेटाइटिस बी में, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में होती है? सर प्लीज. बिल्कुल ठीक है. जो आपका सेकंड क्वेश्चन है मैं इसको पहले एड्रेस करना चाहता हूँ. ये
आप ये गालिबन पूछ रहे हैं कि इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं आपके क्वेश्चन को, कि पेशेंट इज अ ट्रीटमेंट कैंडिडेट फॉर हेपेटाइटिस सी एंड एट द सेम टाइम ही इज नॉट अ ट्रीटमेंट कैंडिडेट फॉर हेपेटाइटिस बी, इज एग्जैक्टली। हाँ, तो दैट इज द टाइम जो मैंने आपको कहा कि जिस वक्त मैं इसको अप्रोच करूंगा केस को, व्हाट आई वुड डू इज कि दिस इज द टाइम के पेशेंट इज नॉट अ ट्रीटमेंट कैंडिडेट फॉर हेपेटाइटिस बी, तो यहां पर मेरा सिर्फ जो एम है दैट इज टू प्रिवेंट अ फ्लेयर, जो कि सॉफ्ट बेस रेजिमेंट्स देने की वजह से हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस में जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है दैट इज 24 वीक्स। क्लियर? यानी हम इसको इम्यून टॉलरेंट समझ मतलब क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। No. हम इसको जस्ट 24 वीक्स का देंगे ताकि फ्लेयर ना हो। ये सिर्फ फ्लेयर को आप कवर अप कर रहे हैं, बट जो मैंने साथ ही आपको बताया, एट द सेम टाइम इफ द पेशेंट हैज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक इन्फेक्शन, और साथ ही दैट पेशेंट हैज हेपेटाइटिस सी, दोनों के पीसीआर पॉजिटिव है, एंड एट द सेम टाइम पेशेंट इज अ ट्रीटमेंट कैंडिडेट फॉर हेपेटाइटिस बी एज वेल, उस सूरत में आप हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। यू विल स्टॉप एट 12 वीक्स एंड एट द सेम टाइम आप हेपेटाइटिस बी की जो ट्रीटमेंट है उसको आप कंटिन्यू करेंगे लाइक अ क्रॉनिक इन्फेक्शन। यानी इसके हम फिर सेम गाइडलाइंस अप्लाई करेंगे इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की जो। दैट वाज माय लास्ट स्लाइड। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो पहला क्वेश्चन है जो यासिर, वो आप एक्यूट हेपेटाइटिस बी के मतलब एक्यूट हेपेटाइटिस में, जी मैं बताता हूँ आपको। वो क्वेश्चन ये है कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी के केस में अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने पेशेंट को ट्रीट करना है विद ओरल न्यूक्लियोसाइड जिस तरह आपने बताया, तो उसकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी? यस सर, ये आई थिंक लेट मी शो यू अ स्लाइड, एक सेकेंड। इसके अंदर आई थिंक आई लॉस्ट द स्लाइड समवेयर। डॉक्टर असद, इसके अंदर इफ यू कैन गाइड अस अ लिटिल बिट, एक्यूट हेपेटाइटिस के जो केसेस होंगे। डॉक्टर यासिर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी मैंने एक्चुअली उसको स्क्रीन शेयर शुरू नहीं किया बिकॉज आई कैन नॉट लोकेट द स्लाइड एट द मोमेंट। मैं उसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर, या मैं आई थिंक आई हैव एक्सीडेंटली मिस्ड दैट स्लाइड इसमें समवेयर। जनरली यासिर जो है कि इफ वी मेक अ केस फॉर ट्रीटमेंट इन एक्यूट हेपेटाइटिस बी, तो जो स्टॉपिंग होगा वो आई थिंक वो फिर आपको एज पर गाइडलाइन ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो क्योंकि एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए, जो पेशेंट्स हु गो इनटू एक्यूट हेपेटाइटिस बी, विद दिस आई मीन जिनको जॉन्डिस डेवलप हो गया और ये सारा कुछ, जिनके वो ALT AST थाउजेंड्स में हैं और आप उनको शुरू करते हैं ट्रीटमेंट, ये वो लोग हैं यूजुअली जो सरफेस एंटीजन सीरो कन्वर्जन अचीव कर जाते हैं। तो अगर वो सरफेस एंटीजन सीरो कन्वर्जन अचीव कर जाता है तो फिर तो यू विल हैव अ स्टॉपिंग पॉइंट। अगर वो सरफेस एंटीजन सीरो कन्वर्जन अचीव नहीं करता, देन यू विल फॉलो देम। और जिस तरह हमने ई एंटीजन नेगेटिव क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात की थी, जो अल्ताफ साहब ने आपको बताया था कि आफ्टर 3 years, if consecutive, you have repeated negative viral DNA, patient is compliant and you can guarantee follow up, then there will be a case for stopping the treatment. लेकिन मैंने इतने acute hepatitis B देखे हैं और यूजुअली जो मुझे याद पड़ता है उनमें से शायद ही कोई जो सरवाइव किए हैं एक्यूट एपिसोड, शायद ही कोई क्रॉनिक स्टेज में गया है। एडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और they all have S antigen zero conversion, whether I have given them nucleoside analog or not, they achieve zero conversion in my clinical practice. जी यासिर, if you have to add anything. मैं एक्चुअली वो इनको एक स्लाइड शो दिखाना चाह रहा था, वो मेरी गालिबन मेरी उसमें से प्रेजेंटेशन में से स्किप हो गई है। वो दैट वाज द स्टॉपिंग रूल्स जो मैंने हेपेटाइटिस बी के इनको शो करना चाहता था।
तो इन केस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी, जिस तरह आपने बताया है कि एक्चुअली इफ दैट इज एन एक्यूट इन्फेक्शन और इसमें अभी तक बॉडी ने उसको क्रॉनिसिटी में जाने ही नहीं दिया हुआ होता, और साथ ही आप उसको असिस्ट कर देते हैं विद एंटीवायरल थेरेपी, इसके अंदर जो आपका जो स्टॉपिंग रूल मेंशन्ड है वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन सीरो कन्वर्जन इनटू एंटी-एचबीएस है. दैट इज द आइडियल जो ट्रीटमेंट एंड पॉइंट इन दिस केस जो एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर है. और साथ ही जो अदर एंड पॉइंट्स अप्लाई होते हैं इसके अंदर, जिसमें एंटी-एचबी सीरो कन्वर्जन एज वेल एज बायोकेमिकल आपकी ALT नॉर्मलाइजेशन हो रही है, ये सारी फैक्टर्स इसके अंदर प्ले इन करते हैं. तो अगर हम बात करते हैं ऑफ वन स्टॉपिंग रूल जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस में देखना है, तो दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ एंटी-HBS एंड डिसअपीयरेंस ऑफ HB सरफेस एंटीजन with normalization of ALT-ST as well. जी थैंक यू. और फारूक मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मेरे ख्याल में जब यासिर एक्सप्लेन कर रहे थे एक वो लफ्ज वो हो गया था जो आपकी को इन्फेक्शन में जो आपका ई एंटीजन पॉजिटिव और ई एंटीजन नेगेटिव जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है वो फ्लेयर स्ट्रेटजी में जाएगा जिसमें 24 वीक्स ट्रीटमेंट की बात हुई है. और जो ई एंटीजन पॉजिटिव और ई एंटीजन नेगेटिव क्रॉनिक हेपेटाइटिस है जो in any case will qualify for treatment, they will go for hepatitis B antiviral treatment जो standard guidelines है और उनके stopping rules भी वही हैं. और आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर आपका पेशेंट सिरोटिक हो. अगर सिरोटिक है तो तो वो फिर आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाती है. और अगर किसी वजह से ये याद रखें, अगर किसी वजह से आप ये डिसाइड करते हैं कि हमने बी का ट्रीटमेंट नहीं देना, पेशेंट अदरवाइज आपको लगता है कि ये इनएक्टिव कैरियर है जो ई एंटीजन नेगेटिव क्रॉनिक इन्फेक्शन कैटेगरी में आती है, जिस तरह अजैर ने अभी केस डॉक्टर ऑज ने प्रेजेंट किया है, 300 समथिंग वायरल लोड है, सब कुछ नॉर्मल है, एप्री इज लेस देन 0.5 एंड लेट्स से वी डिसाइड कि हमने इसको ट्रीट नहीं करना, तो इट्स पैरामाउंट इम्पोर्टेंट कि आपने उसको फॉलो करना है पोस्ट ट्रीटमेंट. यूजुअली हम वीक 12 और वीक 24 पे हम उसका देखते हैं कि HPV DNA क्या है, वो बढ़ तो नहीं रहा, ALT का फ्लेयर तो नहीं आ रहा जिस तरह यासिर ने एक्सप्लेन किया. तो वी जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल कि दो वायरस हैं और ये ना हो कि आप C को इक्वेशन से निकालते हैं तो B अटैक करना शुरू कर दे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. सर एक और क्वेश्चन अगर आप इजाजत दें तो. जी जी बिल्कुल. सर अगर पेशेंट का ALT है 50 और CB को इन्फेक्शन है, तो हम उस वक्त ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस है? हो सकता है उसका ALT C की वजह से रेज हो. देखो ये बड़ी एक लंबी डिबेट होती है, लेकिन अगेन देखो आपके पास बी में ई एंटीजन भी देखना होता है, आपने हेपेटाइटिस बी में वायरल लोड भी देखना होता है, तो ये सारी चीजें उसके साथ फिर आपने एप्री कैलकुलेट करना है, प्लेटलेट्स क्या है, उसका अल्ट्रासाउंड क्या है, ये सारी चीजें हैं. अगर आपको जरा भी शक पड़ता है कि वो एडवांस फाइब्रोसिस है, then you have to treat both and follow all the guidelines. अगर आप दूसरी तरफ उसको हेपेटाइटिस बी के केस में ई एंटीजन पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉनिक इन्फेक्शन में प्लेस कर रहे हैं, लेट्स से, तो फिर जिस तरह यासिर ने बताया आप उसको 24 वीक्स का जो प्रिवेंशन ऑफ फ्लेयर स्ट्रेटजी पे रख के देख सकते हैं. और अगर दैट्स द जी यासिर एनीथिंग यू जी सर, तो इन्होंने क्वेश्चन किया है ना कि अगर ALT लेट सपोज ये तो 50 बता रहे हैं, लेट्स से कि 75 है, ठीक है, मतलब इट्स स्लाइटली रेज्ड, तो यू कैन नॉट डिसाइड फॉर श्योर कि व्हिच इज द डोमिनेंट वायरस. दिस इज योर क्वेश्चन. तो इसके अंदर जी तो इसके अंदर जिस तरह सर ने बताया है, तो जो मेजर फैक्टर आपको पता जो आपको क्लू देगा वो दैट इज ई एंटीजन स्टेटस एंड द वायरल लोड. जिसमें क्वांटिटेटिव अगर आप फॉर थ्योरी पर्पस आप उसको डॉक्यूमेंट ही करना चाह रहे हो, तो हाई वायरल लोड अगर आपका बी का आ रहा है तो मोर चांसेस आर इट्स मोर ऑफ अ हेपेटाइटिस बी मीडिएटेड हेपेटाइटिस जो दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है, rather than the other way around. ठीक है, फाइन. अच्छा, well explained, sir. एक डॉक्टर अताउल्लाह ने क्वेश्चन किया हुआ है
कि what about spontaneous remission in mild acute mild hepatitis B versus antiviral therapy. डॉक्टर तावला, मैंने मेरी शुरू की स्लाइड में ही यही मैंने बताया था कि स्पॉन्टेनियस रिमिशन इन एन इम्यूनोकॉम्पिटेंट, एक आदमी है जो कि नॉर्मल हेल्थी मेल है, नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन बीइंग है, जिसको कोई डायबिटीज नहीं है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट नहीं है, और मतलब उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में जो स्पॉन्टेनियस रिमिशन के चांस है वो वैसे ही 95% है. बट ईजल ये कहती है कि इफ यू इंटरवीन, बट जिस तरह मैंने बताया था कि एट द राइट टाइम, तो आप तो उससे होता क्या है कि जब आप सही वक्त पर इंटरवीन कर जाते हैं तो उसमें एंटीवायरल थेरेपी अगर आप दें तो आप वर्सन होने से पहले ही उसको एक तो डिजीज को कंट्रोल कर लेते हैं, दूसरा चांसेस और क्रॉनिसिटी डिक्रीज करते हैं. लेकिन इसकी एविडेंस जो है वो और उसकी क्लास जो है थोड़ी लो है, तो इसलिए इसको फॉर श्योर नहीं कहा जा सकता. अगर कहा जाता तो हर एक्यूट हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन के अंदर एंटीवायरल थेरेपी जो है वो इंडिकेट हो जाती, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. एंटीवायरल थेरेपी सिर्फ इंडिकेट होती है इन स्पेशल कंडीशंस, जो कि इसमें मैंने अपनी उसमें हाईलाइट की थी कि लाइक पेशेंट वर्सन होने लगा है, आपको लग रहा है कि डिजीज इज गोइंग इनटू अ फ्लेयर, तो प्रोट्रैक्टेड कोर्स वगैरह तो जो है वो तो आ ही रहे हैं, प्रोट्रैक्टेड कोर्स है, साथ में आईएनआर बढ़ रहा है कोई, तो ऐसी सूरत के अंदर तो आपने करनी है ट्रीटमेंट. बट देयर इज नो हेड टू हेड थिंग कि जी इधर से एक्यूट हेपेटाइटिस बी डॉक्यूमेंट हुआ और आपने एंटीवायरल थेरेपी शुरू कर देनी. इफ द पेशेंट इज इंप्रूविंग, अगर वो खुद से ठीक हो रहा है तो उसको ठीक होने दें. जिस तरह असद साहब ने बताया सर ने कि बहुत सारे केसेस कुछ भी ना करें वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, तो 95% is a very big percentage, means almost everybody gets cured. थैंक यू. मैं आपको फारूक एक और आई मीन हम सब कोलीग्स हैं यहाँ पे ऑनलाइन, एक और जो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि यू विल बी सरप्राइज, हेपेटाइटिस बी में जो मेरे पास केसेस हैं, मैंने कितनी दफा अपने कोलीग्स से डिस्कस किया है पीयर्स के साथ. इवन दो आई एम समटाइम्स वेरी श्योर ये जो होता है, आप हैरान होंगे कि मैं अगर कहूँ शायद मैंने 10 में से 6 या 7 केस जरूर ऐसे ही, जिसे आप कहते हैं ना, एवं डिस्कस किए, क्योंकि उसकी वजह ये होती है बी इज समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड इवन टुडे, और समटाइम्स, और यू नो एक आप कहते हैं, आपको याद होगा तो 3 हफ्ते पहले हमारा केस प्रेजेंटेशन थी और उसमें एक ई एंटीजन पॉजिटिव क्रॉनिक इन्फेक्शन थी जो कि इम्यून टॉलरेंट में था, और मैं ये कह रहा था कि इसको हम वेट करेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे. फिर डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किया कि देखो वो पेशेंट डेंटिस्ट है, और डेंटिस्ट है, ही इमेजिन हाउ मच सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ही कैन बी. तो आपके जो बाजुकात आप एक चीज को एक एंगल से हम रिपोर्टों को देख लेते हैं तो ओवरऑल पिक्चर को भूल जाते हैं. किसी की फैमिली हिस्ट्री कैंसर की होती है, किसी की फैमिली हिस्ट्री सिरोसिस की होती है, तो आपको इन सारी चीजों को देखना है. तो इसको जरूर डिस्कस करें. और मैं सारों से कहता हूं कि जो भी मुझे आते भी रहते हैं, हमें व्हाट्सएप में मैसेजेस आ जाते हैं, और वी कैन इवन प्रेजेंट दैट रादर देन के, क्योंकि हर हफ्ते हमारी मीटिंग हो रही है तो हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. यूजुअली देयर आर 2 or 3 एक्सपर्ट्स, इधर भी आई कैन सी डॉक्टर ज़ैद भट्टी साहब और शौकत साहब यहाँ पे हैं, और भी लोग हैं जो काफी ज्यादा हेपेटाइटिस को डील करते हैं. तो विद इन द ग्रुप वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. जो इस एको मॉडल की सबसे बड़ी ये ऑल टीच ऑल लर्न मॉडल है. आई एम श्योर यासिर ने जो भी बताया है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद यासिर से भी ज्यादा जानते हों. तो फिर हम सब सीखते हैं, और फिर लोकल सिनारियोज चेंज होते हैं. हाफिजाबाद में अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट क्या करना चाहिए, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आते हैं कि ये टेस्ट तो होता नहीं है, लेबोरेटरी बहुत हल्की है, और ये इस तरह की चीजें हैं जो समटाइम्स वो हम सब उसको फेस करते हैं. तो आई विल एनकरेज कि हम इसको विल कीप डिस्कसिंग ऑन दिस फोरम, और कोई भी चीज हो विल हैव शुड हैव एविडेंस बेस्ड आंसर. और जहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा है, ग्रे एरिया ज्यादा है, तो वी हैव द लग्जरी ऑफ हैविंग अल्ताफ आलम, जावेद इकबाल फारूकी, यासिर नबी तैयब, Yasir is sitting here. We have top-notch hepatologists from Pakistan to guide us.
Anything else? We still have 5 minutes. Any question or comment before we call off the meeting? कमेंट ये है कि आज का क्वेश्चंस जो हैं सुन के मजा आ गया, और जितना आप कह रहे थे ना कि ऑल टीच ऑल लर्न है, तो इट इज डेफिनेटली ये इवन स्पीकर के लिए भी एनलाइटनिंग होता है कि जब आप क्वेश्चन की फॉर्म में प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं तो आपका अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है. Dr. Yasir, it was very well explained by you. Mashallah. Thank you very much. Thank you. So before I wind up, I just a reminder about Pakistan Society of Hepatology annual meeting on I think 25, 26, 27th. Social media pe, WhatsApp pe already we have been sharing a lot on this, and we have an excellent faculty. आप अपने घर इसी तरह बैठे you will be able to join the meeting. आपको किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन में इश्यूज आए तो do let me know. हम आपको we will be able to get you in. आपको किसी कंपनी को भी कहने की जरूरत नहीं है, आप हमें बताएं, हम किसी तरीके से आपको जिस तरह भी होगा सपोर्ट करेंगे. और आई एम श्योर अगर आप जो कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट है वो लिंक मैंने भी शेयर किया हुआ है, तो जाकर रजिस्टर करेंगे तो आप यू विल बी अकोमोडेटेड ऑटोमेटिकली. सर ये ऑनलाइन होगी मीटिंग? जी ये वर्चुअल है, दिस इज ऑल वर्चुअल, तो यू विल लव इट. उस पर काफी मेहनत हो रही है, वो जरा इस तरह का फोरम नहीं होगा, जरा थोड़ा सा अगर हमारे प्लान्स काम कर गए और कोई टेक्निकली हमें कोई हिट ग्लिच ना आई तो इट विल बी अ वेरी नाइस, और इट्स द फर्स्ट वर्चुअल मेगा इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आई थिंक. so we have a lot to learn. So अभी दिन रात काम कर रहे हैं इसके ऊपर. So thank you very much यासिर. फिर इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा for our listeners कि वो जो हमारा फोरम होगा that is inshallah going to be very similar to this Zoom, तो आप लोगों को ज्यादा इशू नहीं आएगा उसके अंदर, तो you will be जैसे you will feel at home, easy to use होगा वो जो सारा है. असद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब जी वालेकुम सलाम. I am Dr. Jamna Das, you know me. I am general practitioner at Defense. So I am a regular, and you are a proper member of your this discussion programs. My question is that कि if ये CME का certificates वगैरह आप लोग इसमें issue करेंगे हम लोगों को, या just we will be the member of your this conversation programs? आप एको प्रोग्राम इस मीटिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, जितने सारे प्रोग्राम हुए उसमें सीएमई के कोई आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, या कोई एक ही लमसम भाई इतने आवर्स सीएमई हम आपको क्रेडिट आवर्स दे रहे हैं, क्योंकि हमको शायद ये कभी फिर दोबारा प्रॉब्लम आएगा पीएमडीसी में. मेरी इस वक्त तो 22 तक तो मेरी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है. आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए फैमिली फिजिशियन इन डिफेंस पंजाब कॉलोनी, यू नो माय दिस. तो वो सीएमई इसका आपका इस प्रोग्राम का हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? बस ये जस्ट ओनली दिस इज सिंपल क्वेश्चन. जी बिल्कुल आपको मिलना चाहिए और मिलेगा. मैं आप उज़ैर विल नोटेड, तो आपसे हम राब्ता भी कर लेंगे. ये हमारी ये वाला भी सेशन है, ये सीएमई एक्रेडिटेड है. हमें सिर्फ थोड़ा सा इशू आता है अटेंडेंस और बाकी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से. उज़ैर विल कांटेक्ट यू टुमारो, और आपका जो भी होगा, सिर्फ जो कोविड के हैं, जो हमारे कुछ सेशंस हुए हैं उसमें हमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि वो इतनी रैपिडली चीजें प्लान हुई थी कि हम, क्योंकि जेपीएमसी के साथ हमारा सीएमई एक्रेडिटेशन का है, तो वो हम अभी भी हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसके भी वो सीएमई दे दें. जो इससे पहले के हुए थे कुछ के इश्यू हो चुके हैं. मैं उज़ैर हैज एन आइडिया. उज़ैर, कैन यू गिव अ क्विक आंसर ऑन दैट? सर एक्चुअली जो बैच 1 के सर्टिफिकेट्स हैं, दोज आर रेडी. दोज ऑफ हेपेटाइटिस एको, कोविड आर इन प्रोग्रेस, एंड दिस वन वुड बी रेडी आफ्टर दिस. ये जब सीरीज खत्म होगी, अभी 2-3 इसके सेशंस रहते हैं. जी, आप डॉक्टर जमुना दास का सारा नोट कर लें कि मेक श्योर कि डॉक्टर जमुना दास के जितने भी हैं विल गेट दो सीएमई एक्रेडिटेड. अगर उसमें कोई छोटा मोटा इशू भी है तो वी सी वी कैन मैनूवर दैट. सर इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह, जो हो सका विल डू. जी मैं समझता हूँ सर. इसमें बीच में 1-2 दफा रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने उज़ैर अली से साहब से मैंने फोन करके इसका आईडी नंबर मीटिंग का मांगा था. उसी वक्त ही मैंने ज्वाइन किया था. जीशान साहब जेपीएमसी में तो मैं फेमिलियर हूँ इसी से,
उसके मैंने काफी सारे प्रोग्राम जो सिम्पोजा कंपनियां कराती है वो भी मैंने अटेंड किए, पारसा में आए। लेकिन मैं जस्ट सिंपल क्वेश्चन था कि अगर सबको हो रहा है तो अल्टीमेट डेफिनेटली मुझे भी इसका सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं बाकायदा सारे प्रोग्राम अटेंड किए आपके, और मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, क्वेश्चनिंग करता हूँ रेगुलरली। जी 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 थैंक यू। जी थैंक यासिर, यू आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, सर मुझे आई वुड लाइक टू टेक अ मिनट, लाइक नॉट अ मिनट, लाइक 10-15 सेकंड्स। आज हमारे साथ हमारे मेरे एक बहुत अच्छे कुलीग और दोस्त मौजूद हैं। आई होप कि मुझे वो सुन रहे हैं। डॉक्टर फारूक, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आई वुड लाइक कि आपको हम इंट्रोड्यूस करें। आप यू आर अ वेरी गुड एडिशन टू द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सीन ऑफ साउथ पंजाब, स्पेशली मुल्तान। तो मैं सिर्फ 5-10 सेकंड्स चाह रहा था कि आपको मैं इंट्रोड्यूस करूं हमारे इस फोरम के ऊपर, और मैंने इनको एक्चुअली इनवाइट किया था और ही वाज काइंड इनफ टू जॉइन अस, और वो हमारे साथ पूरे सेशन में रहे, और बल्कि ये हमारे चैट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे। तो इसलिए मैं इनको शुक्रिया भी करना चाहता था और साथ ही इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन आपकी, और इट वाज अ नाइस मीटिंग, नाइस कन्वर्सेशन, नाइस हियरिंग यू। तो आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, वो जो एक्यूट हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट का जो क्वेश्चन था, वो आपको आवाज आ रही है मेरी यासिर भाई? यस, आई एम हियरिंग मैम, ऑल इयर्स फॉर यू। जी, वो क्वेश्चन था कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो AASLD जो 2019 की गाइडलाइंस हैं, दे से दैट ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यूड अंटिल द सरफेस एंटीजन इज क्लियर्ड, एज यू टोल्ड अर्लियर। ठीक है। जो सेकंड वो AASLD कहता है, वो कहता है कि आफ्टर 6 to 12 months, AASLD ने यही लिखा है कि 6 to 12 months के बाद, if the surface antigen has not been cleared, then the acute hepatitis has now been changed into chronic hepatitis B. So the stopping rules of treatment would be as similar to the chronic hepatitis B. बस ये दो चीजें हैं. This is one thing that I wanted to add. Beautifully explained, but simple as that. बहुत अच्छा. It's a very good thing. Sir, mashallah, Dr. Farooq is the latest addition to Multan, or I believe he has every degree of gastroenterology known to mankind under his belt. तो ये इनकी एक thank you very much, Farooq. Inshallah, hope to have you here with us on every time. Thank you, Yasir bhai, for inviting me. Thank you. You're welcome. Thank you, Yasir, and welcome, Farooq. So we hope to see you again and again. Over to you, Zaid, for final words and winding up the meeting. Thank you very much for joining this session. Our next session would be on HPV pregnancy and breastfeeding, HPV in children, by Dr. Ali Haider Saab on 16th of September 2020. Till next time, Allah Hafiz. Allah Hafiz.